السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اليوم یوم الاحد 14 صفر 1444 ہجری۔ آج اتوار کا دن ہے، ستمبر کی 11 تاریخ 2022۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے قرآن کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ یونس آیت نمبر 40 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومنہم، اور ان میں سے، من یؤمن بہ، جو اس پر ایمان لے آتا ہے، ومنہم، اور ان میں سے، من لا یؤمن بہ، جو ایمان نہیں لاتا اس پر، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے، بالمفسدین، فسادیوں کو، فساد کرنے والوں کو۔ یعنی ان میں سے کچھ تو ہے جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ ہے جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ یعنی ان میں سے کون؟ مشرکین میں سے جو سو کچھ تو ہے جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور کچھ ہے جو ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب جو سو اچھی طریقے سے جانتا ہے کون فساد کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور اس سے پہلے آیتوں میں جو سو جو آیا تھا کہ یہ لوگ جو سو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا ہے تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو تم اپنے ساتھ جو سو جس کو ملا سکتے ہو ملا لو، اور اللہ کو چھوڑ کر اور اس جیسی ایک ہی صورت ہی بنا کے لا لو۔ اور پھر جو سو دوسری جگہ پر بھی کہا گیا تھا کہ تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے ایسا، اور اگر نہیں کر پاؤ گے تو تم اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ تو یہاں پر بہرحال پھر اس کے بعد جو سو کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ تو ہے جو ایمان لائیں گے اس کے اوپر، اور کچھ ہے جو ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے فسادیوں کو۔ تو پتہ کیا چلا، جو ایمان لائے گا وہ اپنے فائدہ کرے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، انتم بریئون، تم جو سب بری ہو، لا تعلق ہو، مما عمل، اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيٌّ، اور میں بری ہوں، لا تعلق ہوں، مما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات رکھ دینے کے بعد، قرآن کو پیش کر دینے کے بعد، اگر پھر بھی وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ جو سو میرے لیے میرے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، تم جو سو بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سو قرآن کو نازل کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر لوگوں کو سنا دیا، سمجھا دیا، اور اگر اس کے بعد بھی وہ قبول نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد بھی عالم توڑی کرتے ہیں اور ہیلے بہانے کرتے ہیں، تو یہ اب آخری بات ہے، یعنی حجت قائم ہو گئی ان کے اوپر۔ تو اب جو سو آپ آخری جو بات وہ ہے کہ یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، اور میرے اعمال کے بارے میں نہ تم سے پوچھا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اسی کی مثل اور اسی کے برابر جو سو سورہ کافرون میں بھی جو سو کہہ دیا گیا نا، کیا ہے وہ آیت جو ہے نا، تمہارے لیے تمہارے اعمال، میرے لیے میرے اعمال۔ تو بہرحال یہاں پر بھی اس طریقے سے کہا جا رہا، لیکن یہ کب کہا جائے گا؟ کیا ہم کسی کو تبلیغ کرنے سے پہلے یا اس کے پہلے ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر اس کے عمل ہے، ہمارے اوپر ہمارے عمل ہے؟ جیسے کہ آج ہمارے ملکوں میں ہم جو سو خاص طور پہ کفار کے ساتھ تو دور کی بات ہے، کفار کے ساتھ آج ہمارے پاس مسلمانوں کو جو سو بات کرنے کا، ان کو دین سمجھانے کا اتنا نہ سلیقہ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ وقت ہے۔ ہم آپس میں جب مسلمان ایک دوسرے کو جب غلط اور صحیح راستے کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، یا جو سو کوئی لوگ جو سو گمراہی میں پڑے ہیں، ان کو جو سو ہم عمل، نیک راستہ اور صحیح بات بتانے سے پہلے ہی ہم اکثر یہ کہتے ہیں نہیں بھائی ان کو ان کا عمل وہ جانے، ہمارا عمل ہم جانے۔ یا پھر سامنے والا اگر غلط راستے پر ہے اور ہم ان کو صحیح راستے کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی سامنے سے سیدھا ایسے ہی کر دیتے ہیں، لکم دینکم ولیہ دین، جیسے سورہ کافرون میں جو آخری میں ہے، لکم دینکم ولیہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو لوگ جو ہے اس کو اس طریقے سے اتنا آسانی کے ساتھ زبان پہ لا لیتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی تم مائنڈ یور اون بزنس، تم تمہارا کام جانو، ہم ہمارا کام جانتے ہیں، نہ تم ہم کو روکو نہ ہم تم کو روکتے ہیں۔
تو یہ بہرحال مناسب نہیں ہے، اس کا معنی اور مفہوم وہ نہیں ہے۔ اس کے معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب پوری کوششیں کر لی جائے، پوری طریقے سے لوگوں پر حجت قائم ہو جائے اور اس کے بعد بھی سامنے والا سننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ سامنے والا یا تو اتنا آفینسو ہو جا رہا ہے کہ بھئی اب لڑائی جھگڑے کا وقت آ سکتا ہے، یا یہ ہے کہ سامنے والے کے اوپر پوری حجت قائم ہو گئی، اس کے باوجود بھی اب وہ ہٹ درمی پہ آتا ہے اور نہیں سننا چاہتا، اس وقت میں یہ بات فائنل بات کہی جائے گی، اور وہ بھی بار بار اور ہمیشہ نہیں، ایکسٹریم کیسز میں کہی جائے گی۔ ایک بات، دوسری بات کیا ہے، یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حکم، اپنا فریضہ ادا کر چکے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ ایسی بات نہ ہو۔ اب ہمارے ملکوں میں جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور فوراً یہ کہہ دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس میں جو سو اگر سامنے والا غلطی پہ ہونے کے باوجود بھی یہ بات کہتا ہے، تو در حقیقت میں وہ تکبر کی انتہا سے زیادہ جو سو تکبر کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اندازہ کریں کہ کوئی انسان غلط راستے پہ ہے، گمراہی میں ہے، اور اگر اس کو سامنے سے کوئی انسان اس کو ہدایت کے لیے، اس کو رہنمائی کے لیے اس کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو بھائی جو تم عمل کر رہے ہو دین کے نام پر، یہ غلط ہے، یہ قرآن و حدیث کے مخالفت میں ہے، تو سامنے سے وہ کہہ دے کہ بھائی لکم دینکم ولی دین، تمہارا کام تمہارا دن، تمہارے لیے ہمارا دن، ہمارے لیے ہم کو ڈسٹرب مت کرو۔ تو اس طریقے کی جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت میں انتہا سے زیادہ غرور اور تکبر کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کو تو چاہیے کہ اگر کوئی انسان اس کو نصیحت کر رہا ہے تو پہلے سوچ لے بھائی اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا اس کو میرے ساتھ دشمنی ہے، کیا اس کو جو سے میرے ساتھ کوئی نقصان میں نے اس کو کیا ہے کہ میرے لیے نقصان کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، وہ تو میری خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، وہ میرے لیے نصیحت کر رہا ہے، تو نصیحت تو عقل سمجھدار لوگ ہی کرتے ہیں، اور میرے لیے اس کو کچھ محبت ہے، میرے لیے مجھ سے کچھ تعلق ہے، اسی لیے تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے، کچھ نصیحت کر رہا ہے، تو پہلے نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو غور سے سن لیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو جانچ لیا جائے، اور اس کے بعد اگر مناسب سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً ہم صحیح ہے، سامنے والا غلط ہے، تب تو اس کی بات کو چھوڑی جا سکتی ہے۔ لیکن جسٹ فیس ویلیو پر اور اس کو سامنے سے کہتے کہ اسٹاپ، آپ ہم کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ در حقیقت میں بہت زیادہ تکبر کا اظہار ہے، جو کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حکمت جو سو مومن کی کوئی بھی پونجی ہے، جہاں سے بھی ملے اس کو لے لو، یہاں تک کہ جو سو حدیثوں میں جو آیا کہ شیطان بھی اگر تم کو نصیحت کرے تو اس سے لے لو، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ وہ ان کو جو سو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سو بیت المال پر جو کیا کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات کے جو مال وغیرہ تھے، اس پر ان کو انہوں نے نگہبان بنایا تھا، رات میں پہرا دینے کے لیے لگایا تھا، تو وہاں پر جو سو ایک انسانی شکل میں کوئی بوڑھا غریب آدمی جیسا آیا، آ کر اس میں سے چوری کرنے لگا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہا کہ میں تو تجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا، تو اس نے معذرت چاہی، اس نے کہا کہ بھائی میں مجبور ہوں، یہ ہے، انہوں نے افسوس کر کے اس پر رحم کر کے چھوڑ دیا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ 2-3 رات تک مسلسل اسی طریقے سے چوری کرنے کے لیے آتا رہا اور وہ اس کو چھوڑتے رہے۔ تیسری رات میں جب اس کو انہوں نے کہا کہ میں آج تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تو اس وقت میں اس نے ایک نصیحت کی، اس نے کہا کہ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھ کو چھوڑ دو، اور اس نے کیا کہا کہ اگر تم جو سو ہر رات میں آیت الکرسی پڑھ لو گے تو شیطان کے وسوسوں سے بچے ہوئے رہو گے۔ تو دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے اور یہ سارا واقعہ بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کو، کہا کہ جانتے ہو وہ کون تھا، کہا کہ وہ تو ابلیس تھا، وہ تو شیطان تھا، لیکن بات سچ کہا ہے، یعنی دیکھیں اندازہ کریں کہ وہ شیطان انسانی شکل میں آیا تھا، اور جو سو اس نے جو سو ایک نصیحت کی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ نہیں کہا ارے وہ تو شیطان ہے، وہ تو ابلیس ہے، اس کی بات وہ جو تو جھوٹا ہے، بلکہ کہا کہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن بات تو سچ کر کہہ گیا۔ تو اس طریقے سے یعنی اگر شیطان بھی کوئی اچھی بات کہتا ہے تو ہم کو لینے کا حکم ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارے پاس خاص طور پہ یہ ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے، لوگ تکبر اور غرور میں اتنے چور ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ شٹ اپ مائنڈ یور اون بزنس، اور بلکہ کئی لوگ کہتے بھی ہیں بھائی آپ کو کیا پڑی ہے، ہم جو کر رہے ہیں کرنے دو ہم کو، آپ اپنا کام دیکھیے۔ تو یہ بہت بڑا برا معاملہ ہے، اور ہمارے اٹس پارٹ آف اوور بزنس ایکچولی، اگر کوئی اس طریقے سے ہم سے کہتا ہے تو ہم اچھے اللہ سے کہیں گے میرے بھائی یہ میری یہ ذمہ داری ہے، اسی لیے تو میں یہ عمل کر رہا ہوں، ورنہ مجھ کو حقیقت میں کیا پڑی تھی آپ کو جو سو ٹوکنے کی، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ ذمہ داری دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن میں تامرون کیا کہا کہ بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکتے رہو، اللہ تعالیٰ جو سو لوگوں کو حکم دے رہا ہے
कि तुम जो सो बल्कि कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो, तुम लोगों को नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला हमको यहाँ पर हुक्म दे रहा है कि तुम लोगों के अंदर जो सो नेकी है उनका फरीज़ अदा करो, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते रहो और बुराई से रोको। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको यही कहा है कि तुम जो सो अपने भाई के लिए वही कुछ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो इंसान जब अपने लिए जन्नत में जाना पसंद करता है, तो अपना कोई भाई को देखता है कि वो बुराई का रास्ते पे जा रहा है और गुनाह के रास्ते पे जा रहा है, तो कैसे खामोश हो सकता है? तो बहरहाल ये हमारी ज़िम्मेदारी है और यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो एक एक्सट्रीम स्टेप है। जब पूरी कोशिशें हो जाए, जब पूरा का पूरा मामला हो जाए और यहाँ तक कि अगर हम उनको किसी को तब्लीग कर रहे हैं, वाज़-ओ-नसीहत कर रहे हैं, तमाम हुज्जतें पेश कर दिया, अब सामने वाला जो सो लड़ाई झगड़े पर उतर आता है, उस वक़्त में हम कहेंगे, भई तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन, मैंने तो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर दिया। तो वहाँ यहाँ पर भी अल्लाह ताला इसी तरीके से कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद भी इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर ये आपको झुकाते हैं, तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा दिन है, मेरे लिए मेरे अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है। और तुम बरी हो मेरे अमाल से और मैं बरी हूँ तुम्हारे अमाल से। और जो कि हकीकत है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा कल क़यामत में। हर इंसान को अपने-अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन हमको फैसला ये होगा कि हमारे आँखों के सामने अगर कोई गुनाह में था, बुराई में था और अगर हमने उनको नहीं रोका, तो अल्लाह के पास हमको जवाब देना होगा। उसी तरीके से कल क़यामत में जो हमारे इर्द-गिर्द होते हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब है, जो हमारे रिश्तेदार है, जो हमारे मिलने-जुलने वाले हैं, वो उनके साथ हम दुनिया के कारोबार तो करते हैं, लेकिन अगर हमने उनको दीन की बात नहीं समझाई, तो कल क़यामत में अल्लाह के सामने उज़र पेश करेंगे कि या अल्लाह, ये लोग तो खुद सही थे, लेकिन हमको जो सो सही रास्ता नहीं बतलाए थे। तो इस वजह से बहरहाल हमको कोशिश करते रहना है लोगों को, सबसे पहले तो खुद हम नए नेक रास्ते पे चलें और हम जो सो नेकियों का अमल करते रहें, साथ में लोगों को नेकी की तरफ बुलाते रहें और खुद हम बुराई से बचते रहें और लोगों को बुराई से बचने की तलक़ीन करते रहें। व मिनहुम, और उनमें से मन यस्तमिऊना, जो कि कान लगाते हैं इलैका, आपकी तरफ। अफ़ अंता तुस्मिऊ, क्या आप सुनाएँगे? सुम्मा, बहरे को, वलो कानू ला याक़िलून, अगरचे कि वो अक़ल भी नहीं रखते हैं। यानी इनमें से कुछ लोग हैं जो आपके तरफ कान लगाते हैं, लेकिन क्या नहीं, दर हकीकत में कान तो लगाते हैं लेकिन उनका मकसद हक़ को कबूल करना नहीं होता है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या आप ऐसे बहरों को सुनाएँगे जबकि वो जो सो अक़ल भी नहीं रखते हैं। मतलब ये है कि अगरचे कि वो आपके सामने बैठेंगे, आपकी महफ़िल में बैठेंगे, सुने जैसे तो करेंगे, लेकिन दर हकीकत में उनका मकसद जो सो हक़ को कबूल करना नहीं होता है, कान लगा के सुनना नहीं होता है। इस वजह से जो सो अल्लाह ताला उनकी ताबीर जो सो बहरों जैसी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या आप ऐसे बहरों को सुनाएँगे जो कि ख़ास तौर पे अक़ल भी नहीं रखते हैं। मतलब क्या है कि कोई इंसान ऐसा बहरा है जो कि अक़ल भी नहीं रखता है। क्योंकि अगर कोई बहरा हो, थोड़ा समझ रखता हो, तो उसको इशारे से कोई बात कही भी जा सकती है। तो यहाँ पर उसके अंदर दोनों नक़्स है, एक तो बहरा भी है, दूसरा अक़ल भी नहीं रखता। तो मतलब क्या है कि कोई अगर आपकी बात सुन तो रहा है, लेकिन उसके कानों में वो बात नहीं उतर रही है और इसके अंदर इतनी भी अक़ल नहीं है कि हक़ को कबूल करे, तो ऐसों को आप जो सो हिदायत के लिए नहीं ले आ सकते। व मिनहुम, और उनमें से मन यंज़ुरू इलैका, जो कि तकते रहते हैं आपकी तरफ। अफ़ अंत तहदिल उम्या, क्या आप हिदायत देंगे, क्या आप रहनुमाई करेंगे अंधे को? वलो कानू ला युबसिरून, अगरचे कि वो देखते भी ना हो। फिर वही बात है कि अगर कुछ लोग आपके तरफ तक रहे हैं, यानी आपकी तरफ आपको देख रहे हैं, लेकिन दर हकीकत में वो हक़ को कबूल करना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए अल्लाह ताला उनके बारे में कह रहे हैं कि वो अंधे हैं और उनको जो सो ना ना तो उनकी ज़ाहिरी बीनाई काम करती है, ना ही उनके दिल के अंदर जो रोशनी होनी चाहिए वो भी नहीं है, दोनों से महरूम है। तो ऐसे अंधों को क्या आप हिदायत की तरफ ला सकते हैं? नहीं ला सकते। वही बात है कि कोई आपके महफ़िल में बैठकर सुन तो रहा है, लेकिन वो हक़ को कबूल नहीं करना चाहता। उसी तरीके से कोई आपकी तरफ देख तो रहा है, लेकिन आपकी बात को सुनने का गरज़ नहीं रखता, तो ऐसे लोगों को ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं सुना सकते। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यज़लिमुन नासा शैअन, ज़ुल्म नहीं करता लोगों पर ज़रा-सा भी, वलाकिन्नन नासा, और लेकिन लोग अनफुसहुम, अपने नफ्सों पर यज़लिमून, ज़ुल्म करते हैं। यानी अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि लोगों के ऊपर ज़ुल्म करे ज़रा-सा भी, लेकिन लोग ही दर हकीकत में अपने नफ्सों पर ज़ुल्म करते हैं। मतलब क्या है कि जब लोगों
सबके सामने हक बात आ गई, अल्लाह ताला जो सो कुरान को नाजिल कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो उनके सामने कुरान को पेश कर दिया। अब जब वो फिर भी नहीं सुनेंगे तो जाहिर बात है कि अल्लाह ताला उनको सजा देगा। दुनिया में देगा तो देगा, अगर दुनिया में ना दे तो आखिरत में तो यकीनन देगा। तो इसको कोई ये ना कहे कि अल्लाह ताला जुल्म कर रहा है। जैसे कि आज अक्सर जो सो गैर मुस्लिम लोग खासतौर पे जब कुरान में जो सो अजाब की आयतें पढ़ते हैं, या कुरान में जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के अजाबों के बारे में जिक्र किया है, और ये कि जो सो इंसानों को जिस तरीके से अल्लाह ताला अजाब देगा, तो लोग ये कहने लगते हैं कि देखो बोले तुम्हारा रब जो सो बहुत जालिम है, वो इस तरीके से अपने बंदों को अजाब देना चाहता है। तो उसका जवाब अल्लाह ताला यहाँ पर देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करता है, लेकिन दर हकीकत पे इंसान ही अपने नफ्स पर जुल्म करता है। वो कैसे? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अल्लाह ताला ने हमको ये जो जिस्म दिया है और हकीकत में हमारा जो ठिकाना था वो जन्नत था। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी हमारी वालिदा हज़रत हव्वा दोनों के ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत में जो सो मुकाम दिया और कहा कि तुम यहाँ पर रहो, खाओ पियो, जहाँ से चाहो खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब नहीं जाना। तो पता क्या चला, इंसानों का हकीकी ठिकाना जन्नत था और वहाँ पर उनको खाने पीने की कोई फिक्र नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब उनसे गलती हो गई, अल्लाह की नाफरमानी की है, तो अल्लाह ने सजा के तौर पर और आजमाइश के तौर पर उनको जमीन पर भेज दिया और कहा कि पहले तो मैंने तुमको जन्नत ऐसे ही दे दिया था, विरसे में दे दिया था, लेकिन अब तुमको जो सो इसको कमाना पड़ेगा, इसको हासिल करना पड़ेगा, नेक अमाल करके हासिल करना पड़ेगा। तो इस इंसान को जो अल्लाह ने जिस्म दिया है और इंसान का असल ठिकाना तो जन्नत है, लेकिन ये अब दोबारा उसको हासिल करना है। और अगर उसने दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार कर अगर जन्नत को हासिल कर लिया, तो उसने तो अपने साथ खैर-खाई का मामला किया। लेकिन अगर उसने जो सो दुनिया में अपनी मनमानी किया, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक कर दिया, तो उसने अपने नफ्स पर ज़ुल्म किया। वो इस तरीके से कि उसका ये जिस्म जो था, इसको तो जन्नत में जाना था, लेकिन उसने अपने अमाल की वजह से उसको जहन्नम में जाने का मुस्तहिक कर लिया, तो दर हकीकत में उसने अपने नफ्स पर ज़ुल्म किया। और जो भी इंसान शिर्क करता है या कुफ्र करता है, तो वो अल्लाह पर या किसी और पर कोई ज़ुल्म नहीं कर रहा होता है, वो दर हकीकत में खुद अपने नफ्स पर ज़ुल्म कर रहा होता है। वो इस तरीके से कि इस नफ्स को जो अल्लाह ताला ने जन्नत में जाने के लिए बनाया था, वो अपने करतूतों की वजह से, अपने बुरे अमाल की वजह से उसको जहन्नम का मुस्तहिक कर रहा है, अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक कर रहा है, तो दर हकीकत में वो अपने नफ्स पर खुद ज़ुल्म कर रहा होता है। व यौमा, और जिस दिन यहशुरुहुम, हम जमा करेंगे इन्हें, कअन लम यल्बसु, गोया कि उन्होंने नहीं रहा है, इल्ला साअतम मिनन नहारी, एक घड़ी दिन में से, या या यतआरफूना बैनहुम, वो आपस में एक दूसरे को पहचान रहे होंगे। कद खसिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू, तहक़ीक़ उन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाल लिया, वो जिन्होंने झुटलाया बिलिक़ाइल्लाहि, अल्लाह से मुलाकात को, वमा कानू मुहतदीन, और वो नहीं थे हिदायत याफ्ता। जिस दिन हम लोगों को जमा करेंगे, तो उस दिन हालत क्या होगी, यानी क़यामत के दिन, उस दिन वो जो दुनिया में उन लोगों ने ज़िंदगी गुज़ारा होगा, चाहे 100 साल की भी ज़िंदगी किसी ने दुनिया में गुज़ारी होगी और उसके बाद वो वफ़ात पाया होगा, तो उसका हालत क्या होगी, क़यामत के दिन उसको ऐसे महसूस होगा कि दुनिया के अंदर उसने जो सो एक पूरा एक दिन भी नहीं, बल्कि दिन की एक आध घड़ी, थोड़े से वक़्फ़े के लिए शायद वो दुनिया में रहा हो, उसको ऐसे महसूस होगा और वो एक दूसरे को पहचान रहे होंगे। और तहक़ीक़ उन लोगों ने जिन लोगों ने अल्लाह से मुलाकात को झुटलाया, उन्होंने अपने नफ्स को खसारे में डाल दिया और वो हिदायत पाने वाले भी नहीं थे। मतलब क्या है कि दुनिया में अगर किसी ने पूरे 100 साल भी अगर ज़िंदगी गुज़ारा हो और दुनिया में जो सो पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुज़ारा हो, जैसे कि अभी जो सो कोई मलिका जो सो इंतकाल कर गई है और 96 साल की उम्र में जो सो इंतकाल कर दी, और उसको दुनिया की कोई तकलीफ और परेशानी थी, सारी दुनिया की नेमतें और सब कुछ मयस्सर था। अब अल्लाह ताला का जो जो ये हुक्म है और जो आयत आ रही है, उसको पढ़ के देखें कि दुनिया में इतना ऐशो आराम और इतनी लंबी ज़िंदगी गुज़ारने के बावजूद भी कल क़यामत में जब क़यामत के हौलनाकियों को देखेगी और कल क़यामत के मंज़र को देखेगी, तो उसको ऐसे महसूस होगा गोया कि जो सो दुनिया में जो सो एक दिन, पूरा एक दिन भी नहीं,
बल्कि दिन का छोटा सा हिस्सा, एक आध घड़ी जो सो दुनिया में गुजारी होगी। और उसके बाद में जब वो लोग एक दूसरे को पहचान रहे होंगे और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तहकीक उन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाल लिया, जो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मुलाकात, अल्लाह से मुलाकात को भुला बैठे थे और उस पर यकीन नहीं रखते थे, तो क्योंकि उन लोगों ने देखिए, और वो हिदायत याफ्ता भी नहीं है। तो पता क्या चला, दुनिया में सारी नेमतें थी, सब आज़ाइश थे, सब जो अल्लाह के इनामात वगैरह थे, सबसे फ़ायदा उठाए। लेकिन अगर नहीं फ़ायदा उठाए तो हक़ को कबूल नहीं करे और ना अपने हकीकी माबूद को पहचाना और अल्लाह से दोबारा मुलाकात का यकीन नहीं था। आज जितने भी कुफ़ार हैं, उन सब का मामला यही होता है कि वो कल क़यामत में जो सो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, उसका उन्हें यकीन नहीं होता है। क्योंकि अगर उसका यकीन हो जाए, तो फिर वो जो सो फ़िक्रमंद हो जाएँगे कि कल क़यामत में जब अल्लाह के सामने हम खड़े होंगे, तो क्या मुँह दिखाएँगे और अल्लाह जो सो क्या हमसे क्या मुतालिबा करता है। तो बहरहाल यहाँ पर जो सो एक बात, यानी जितनी भी दुनिया में सारी नेमतें भी पा के आए होंगे, कल क़यामत की हौलनाकियों को देखकर उनको ऐसे लगेगा कि हमने जो सो दुनिया में एक लम्हे के लिए या कुछ घड़ियों के लिए दुनिया में ज़िंदगी गुज़ार के आए। तो सारी नेमतें सब कुछ फीकी पड़ जाएँगी उस हौलनाकियों और उन जो सो क़यामत के मंज़र के सामने। उसके मुकाबले में बरअक्स, इसके बरअक्स में अगर कोई इंसान 100 साल की भी ज़िंदगी गुज़ारा है और सारी ज़िंदगी पूरी की पूरी ज़िंदगी मशक्क़त और तकलीफ़ और परेशानी में ही गुज़ारा होगा, उसके बावजूद भी कल क़यामत में जो हौलनाकियाँ और उसकी जो परेशानियाँ वो होंगे, उसको देखने के बावजूद भी उसको जो सो वो सारी मुसीबतें और सारी परेशानियाँ जो दुनिया में उसने गुज़ार के आया है, वो उसको हल्की लगेंगी। क्योंकि क़यामत में उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ें और कहीं ज़्यादा हौलनाकी होगी, तो वो ऐसे ही समझेगा जैसे कि दुनिया में मैंने तो 1 दिन या 1 लम्हे के लिए, चंद लम्हों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी गुज़ार के आया हूँ। तो अंदाज़ा करें कि वो क़यामत का दिन कैसा होगा, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा, कहीं पर कहा कि 1000 साल के बराबर होगा, कहीं पर कहा कि 50,000 साल के बराबर होगा। तो बहरहाल जितना भी होगा, और उस दिन हालत क्या होगी कि जो सो लोग अपनी-अपनी परेशानी में अपने-अपने ना नफ़्सा-नफ़सी का मामला होगा। लोग अपने-अपने जो सो पसीनों में डूब रहे होंगे और लोग खड़े हुए होंगे और अल्लाह ताला उनके बीच में फ़ैसला भी नहीं कर रहा होगा। फिर उस वक़्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे, अल्लाह से दुआ माँगेंगे, या अल्लाह तेरे बंदे परेशान हैं, तू जो सो इनका मामला शुरू कर, इनका हिसाब शुरू कर। उस वक़्त में अल्लाह ताला हिसाब शुरू करेगा। तो बहरहाल ये क़यामत की हौलनाकियाँ जो है, वो यकीनन बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त है, जिसके बारे में जो सो तो कुरान और हदीस में बहुत सारी जो सो वहीदें आई है, बहुत सारा ये है, और उसमें जो सो हर एक को परेशानी होगी। हाँ, उसके बाद इब्तिदा में तो सब परेशान होंगे, लेकिन उसके बाद जब हिसाब-किताब शुरू होगा, तो मोमिन लोग जो होंगे, जो ईमान वाले होंगे, उनके साथ अल्लाह ताला खैर-ख़ाई का मामला करेगा, उनके साथ आसानी का मामला करेगा, और उसके बाद जब उनको जन्नतों में डाल देगा, तो उनके लिए तो हमेशा-हमेशा की नेमतें हैं। और उसके बरअक्स में जो जो नाकाम हो गए और अल्लाह के पास जो सो सज़ा के मुस्तहिक हो गए और जिनको जहन्नम में डाल दिया गया, तो वो तो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। व इम्मा नूरियन्नका, और अगर हम आपको दिखा दें, बाज़ल लज़ी नईदुहुम, कुछ चीज़ें जो हम उनसे वादा करते हैं, और नतवफ़्फ़ी न और नतफ़ई और नतवफ़्फ़यन्नका, या हम आपको वफ़ात दे दें, फ़ इलैना, बस हमारी तरफ मर्जिउहुम, उनका लौटना है, सुम्मल्लाहु, फिर अल्लाह शहीदुन, गवाह है, अला मा यफ़अलून, उस पर जो वो कुछ अमल करते हैं। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम जो सो आपको आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें दिखला दें जो हम इनके ऊपर इनसे जो सो वादा करते हैं, या फिर हम आपको उससे पहले ही वफ़ात दे दें, तो याद रखिए कि इनका लौटना तो हमारे ही पास है, फिर अल्लाह ताला तो गवाह है उस तमाम अमाल पर जो ये करते हैं। मतलब क्या है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गमगीन ना हो, आप परेशान ना हो, जो हमने ये मुशरिकीन और कुफ़ार से जो वादा कर रखा है कि अगर हम इन लोग हमारी बात को नहीं मानते हैं, आपकी बात को नहीं मानते हैं और अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हैं, आप पर ईमान नहीं लाते हैं, तो हम इनको जो है जहन्नम में की सज़ा देंगे, दुनिया में भी हम हलाक करेंगे। तो अगर हो सकता है, मुमकिन है कि हम आपकी ज़िंदगी के अंदर ही इनके ऊपर कोई सज़ाएँ इनको ला दें, जो हम उनका वादा करते हैं, जिनको दिखाना चाहते हैं हम अज़ाब, तो उसको हम आप आपकी आँखों के सामने हो सकता है कि हम इनके ऊपर कुछ अज़ाब को लेकर आएँ और आपको दिखा दें। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले अगर हमने आपको वफ़ात भी दे दी, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो सो छूट जाएँगे, बल्कि दर हकीकत में आखिरकार में तो इनको लौटकर हमारे ही पास आना है, और उस वक़्त में अल्लाह ताला तो गवाह है इनके मामलात के बारे में, और अल्लाह ताला जो सो इनको पूरा-पूरा सज़ा देगा दुनिया आखिरत में।
तो पता क्या चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ज़िंदगी में हमने इनको अज़ाब नहीं दिया तो ये तो बच जाएँगे, नहीं। अगर हमने आपकी ज़िंदगी में इनको अज़ाब दे भी दिया तो हो सकता है ये आपके लिए आपकी आँखों की ठंडक बन जाएगी। आपको एहसास हो जाएगा कि आपने जिनके ऊपर मेहनत किया और जिन्होंने आपकी तबलीग को नहीं माना, तो अल्लाह ताला ने उनको गिरफ्त कर लिया। और जिनको अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में गिरफ्त नहीं किया, हो सकता है आपकी वफ़ात के बाद गिरफ्त करे, या हो सकता है अगर वफ़ात के बाद भी अगर अल्लाह ताला दुनिया में गिरफ्त ना करे, लेकिन आखिरत में तो उनको सज़ा देकर ही रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर तो हुज्जत कायम हो गई है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला आखिरत में तो सज़ा देगा। और इसमें यहाँ पर एक बात जो वाज़ेह है, वो क्या है? अगर हम आपको वफ़ात दे दें, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपकी वफ़ात हो जाए, तो इससे साबित क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला वफ़ात देने वाला है, और अल्लाह ताला ने यकीनन आपको भी वफ़ात दिया है। और जो 12 रबीउल अव्वल के दिन जो अभी अगला महीने आएगा, जिसमें बदबख्त लोग जो सो खुशियाँ मनाते हैं, जबकि वो 12 वफ़ात का दिन खुद हमारे मुल्कों में आज से चंद साल पहले उसको 12 वफ़ात के नाम से जाना जाता था। यानी 12 रबीउल अव्वल जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है, उसको ज़ालिमों ने जो सो 12 वफ़ात भी कहते थे और उस दिन खुशियाँ भी मनाते थे। लेकिन जब लोग जो सो तंज़ मारने लगे, तो उसको अब क्या कहने लगे हैं, ईद मिलादुन नबी का नाम दे दिया और उस दिन जो सो खुशियाँ मनाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन कौन-सा है, इस पे तो बहुत इख्तिलाफ़ है, लेकिन वफ़ात का दिन तो तहक़ीक़न ये साबित है कि 12 रबीउल अव्वल ही है, और 12 रबीउल अव्वल के दिन जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकीनन वफ़ात हुई है, आप दुनिया से जा चुके हैं। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने काफ़िरों को सज़ाएँ भी दिया है, और अगर दुनिया में काफ़िर बच भी गए, लेकिन आखिरत में तो अल्लाह के अज़ाब से और अल्लाह की सज़ा से बच नहीं सकते हैं। तो बहरहाल इसी पे हम इत्तेफ़ाक करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।